طرف چلتے ہیں. جو لاسٹ سنڈے کو ہم نے جو نیو ایئر سنڈے تھا 31 تاریخ کو ہم نے سیکھا تھا کہ خدا نے طرح طرح سے نمک کا عہد کے بارے میں سیکھا تھا کہ وہ عہد خدا نے کیے اور 7 قسم کے عہد ہم سیکھتے ہیں. ہم نے غور کیا تھا کہ کیسے خدا نے شروع سے 7 قسم کے عہد جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ کیے. تو آج ہم سیکھیں گے ایک اور نیا عہد جو 7واں عہد تھا وہ ہم نے نہیں سیکھا تھا. وہ آج کیونکہ ہم ابھی آپ نے سب لہو کے گیت بھی گائے ہیں, ہاللویا, یسوع کے لہو کو پکاریں, یسوع کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے, صاف کرتا ہے. وہ یہ ایک اور عہد ہے جو خدا نے نیو ٹیسٹمنٹ کی کلیسیا کے ساتھ باندھا. بے شک اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کلیسیا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو عہد ہے ابراہیم کے ساتھ باندھا گیا, داؤد کے ساتھ باندھا گیا, وہ سب میں بھی آپ اور میں شامل ہیں کیونکہ ہم یسوع مسیح میں ہیں. یسوع مسیح کیونکہ اس پورے عہد کا مالک ہے, ہاللویا, وہ پورا عہد ہے. خداوند یسوع مسیح خود ایک کووننٹ ہے, ایک پرومس ہے, ایک عہد ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا پورا, آمین. اور نیو ٹیسٹمنٹ کی کلیسیا نئے عہد نامے کی کلیسیا جو ہے اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے ایک نیا عہد باندھا. اور وہ کیا عہد تھا جو ہم آج ہولی کمیونین بھی ہے, وہ ہے خون کا عہد, آمین. خون, اپنے خون کا عہد. پرانا جو موسیٰ کے ساتھ باندھا تھا, جو ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا, انہوں نے بھی قربانیاں چڑھائی تھی اور ان کے ساتھ بھی خون کے وسیلہ سے ہی خدا نے عہد پکا کیا تھا. نمک کے عہد کے علاوہ وہ نمک کا عہد خدا نے باندھا تھا, مگر اس نے کہا تھا کہ جب تم قربانی چڑھاؤ یا میرے پاس آؤ تو اس قربانی کو بھی نمکین کر کے لے کر آؤ. مگر یہ تھا کہ اب نیو ٹیسٹمنٹ میں خدا ایک اور طریقے سے اپنے لوگوں کے ساتھ, دنیا کے ساتھ یہ عہد باندھتا ہے. وہ لہو کا عہد ہے, وہ اس کے خون کا عہد ہے جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بکروں, بیلوں, بچڑوں کے خون سے اس عہد کو سیٹسفائی کیا جاتا تھا, اس کی قربانی کو سیٹسفائی کیا جاتا تھا خدا کے آگے. مگر وہ کافی نہیں تھی قربانی. وہ عبرانیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ بیلوں اور بچڑوں کا خون جو تھا وہ کافی نہیں تھا کہ لوگوں کے گناہ دور کر سکے, دھو سکے, آمین. وہ کور کر, قربانی کا مطلب ہے کور کرنا, ڈھانک دینا. وہ صرف ڈھانکتے تھے, پر خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں آنا پڑا, خدا کے بیٹے کو اس دنیا میں آنا پڑا. خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا, اپنا کلام بھیجا, اپنا پاک روح بھیجا, جس کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے اور اس جسم کو جو خدا نے تیار کیا تھا وہ انسانی حالت میں انسانوں کے لیے قربانی بنا, میرے اور آپ کے لیے قربانی بنا. تو ہم دیکھتے ہیں آدم اور حوا کے ساتھ جو عہد باندھا تھا خدا نے, بڑھو پھولو محکوم کرو سارے کا. اور اس کے بعد ایک جو عہد تھا شیطان کو بھی خدا نے کہا تھا, وہ بھی ساری دنیا کے لیے وہ عہد تھا کہ ابلیس کے سر کو عورت کی اولاد سے ایک شخصیت پیدا ہوگی جو ابلیس کے سر کو کچلے گی. وہ بے شک اس کی ایڑی پہ کاٹے گا مگر اس کا سر جو ہے وہ کچلا جائے گا. تو خداوند یسوع مسیح وہ شخصیت تھی جس نے ابلیس کے سر کو کچلا, صلیب پر اس کو شکست دی ہے. اور پھر نوح کے ساتھ عہد باندھا خدا نے, اور پھر ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا. اس میں صرف یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ چیزیں لاسٹ سنڈے کو سیکھی تھی. اس کے بعد موسیٰ کے ساتھ عہد باندھا اور پھر داؤد کے ساتھ. یہ نمک کے عہد کی بھی بات اس میں شامل ہے. بے شک ان کو جب اس عہد کو سیٹسفائی کرنا ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی قربانی چڑھانی پڑتی تھی جس میں خون بہایا جاتا تھا. اور پھر جو 7واں عہد ہے وہ 7واں عہد ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا خون کا عہد جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں لوکا 22 باب اور اس کی 20 آیت میں. اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کے ورڈ ہے. اس کے بعد پولس رسول کلیسیا کے لیے
सेम इंस्ट्रक्शंस जो होली कम्युनियन की है वो लिखते हैं, जो हम नॉर्मली सब चर्चिज में जिस दिन होली कम्युनियन होती है वो पढ़ा जाता है हवाला। आई मीन पहला करंथियों 11 बाब उसकी 25 आयत में पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को यही इंस्ट्रक्शंस जो खुदा यीशु मसीह ने दी हैं वो यही कहकर लिखता है कि इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है। आई मीन ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, क्योंकि पुराने अहदनामे का जो खून का अहद था, हम देखते हैं एक दो वर्सेस उसको भी देखेंगे, वो पुराना अहद था। इसलिए खुदावन ने ये जो अहद है, ये जो कवनेंट है, इसको नए अहद का नाम दिया है। आई मीन नए अहद का 7वीं जो बात है, नए अहद का नाम दिया कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। ठीक है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। मेरी बाइबल वहां पड़ी होगी, बाइबल भी और बुक भी, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आगे चलते हैं अजीजों। खुदावन यीशु मसीह ने जो अहद बांधा है, मुकाशफा की किताब बताती है, मैं ये ब्लड कवनेंट पे खुदा ये लहू का जो पैगाम है, इस पे मैं सारी शाम प्रीच कर सकता हूं, मगर थोड़ा छोटा सा इसको आज देखेंगे कि होली कम्युनियन भी है। और मैंने अपने साथ ये अहद किया कि अब बस आधे घंटे 20 मिनट का ही मैसेज देना करना, जितना समझ आ जाए सबको। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और फिर जो हमारे साथ ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग होते हैं। और फिर हमारा आपको पता है हमारा जो मैसेज है, ये पाकिस्तान में 2-3 टीवी चैनल्स हैं, केबल चैनल्स हैं, जहां पर एवरी संडे का मैसेज हमारा चलता है। कराची में भी है, लाहौर में भी 2 जगह पर है, तो चलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम जब यहां पर खड़े होते हैं, कोई प्रीच कर रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे पास हजारों लोग हैं जो इस इबादत को अटेंड करते हैं। आमीन। जैसे भाई अनिल कह रहे थे कि मैं घर बैठ के अटेंड कर रहा था, तो मुझे सब लोग बड़े खूबसूरत नजर आ रहे थे, वर्शिप टीम बड़ी, तो इसी तरीके से लोगों को नजर आता है, तो अच्छा है खुदा उनके लोग खूबसूरत नजर आए। हालेलुया, प्रेज गॉड, खूबसूरत नजर आए, मुचड़े हुए चेहरे नहीं होने चाहिए, झुके हुए चेहरे नहीं होने चाहिए, कि खुदा में हम खुश हैं जब वर्शिप करते हैं। प्रेज गॉड। तो अजीजों, मुकाशफा की किताब में हम पढ़ते हैं, मुकाशफा 13 बाब में, कि वो खुदावन यीशु मसीह तो ऑलरेडी वो दुनिया जब बनी थी उसी वक्त वो कुर्बान हो गया था। खुदा की सोच में भी, और एक और तरीके से हम देखते हैं कि वो खुदावन यीशु मसीह तो उसी वक्त वो कुर्बान हुआ। 13 बाब की 8वीं आयत, मुकाशफा 13 बाब उसकी 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ था। जमीन के सब रहने वाले, ठीक है, सब रहने वाले, जमीन के सब रहने वाले जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए, वो बर्रा जो कब ज़िबा हुआ था? बनाए आलम से। जो जिस वक्त दुनिया बनी है उस वक्त से वो जो बर्रा ज़िबा हुआ था, उसकी किताब जो है किताबे हयात, बर्रे की किताबे हयात में जिनके नाम नहीं लिखे गए, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। उस हैवान की, वो 666 जिसका निशान है, वो मुखालफे मसीह जिसको कहते हैं, वो हलाकत का फर्जंद जिसको कहते हैं, वो लोग जिनके नाम बर्रे की किताब में नहीं लिखे गए, वो उसकी परस्तिश करेंगे। उनके नाम लिखे ही नहीं गए हैं। अगर लिखे गए तो वो हो सकता है मिट गए हों,
वो लिखे गए नाम मिटे जा सकते हैं। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, वो भी मुकाशफा के में हम जब तीसरे बाब में पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह इस बात का जिक्र करते हैं कि उनके नाम मिटाए भी जा सकते हैं। बहुत से लोगों के नाम मिटाए जा सकते हैं, मिटाए जा सकते हैं जो खुदा के साथ नहीं चलते चलते पीछे हट जाते हैं, मगर खुदा अगर कोई बैक स्लाइड हो जाता कोशिश करता खुदा के पूरे उनको वापस लेकर आए। तो अजीजों, यहां पर लिखा है कि वो बर्रे की किताब हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है, उस हैवान की वो लोग परस्तिश करेंगे। अजीजों, बनाए आलम के बाद वक्त जब वो बर्रा ज़िबा हुआ, उसका खून बहाया गया, वो बर्रा कौन था? वो खुदावंद यीशु मसीह ही था। आमीन, वो खुदावंद यीशु मसीह था। हम जेनेसिस में, पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं, उसके तीसरे बाब में, पैदाइश तीसरा बाब और उसकी 21वीं आयत, पैदाइश तीसरा बाब और उसकी 21 आयत में हम पढ़ते हैं, और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानिद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ क्रोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोला जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। क्या चीज? हाँ जी, 21वीं आयत में मैं पढ़ता हूं। 21वीं आयत भी, 21वीं आयत में ऐसा लिखा है कि और खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। मैंने 21वीं आयत बाद में जान के पढ़ी है, बाद में मैं कुछ एक्सप्लेन करना मांग रहा था। खुदावंद खुदा ने, अब मैं खुदावंद का शुक्र, मैं बगैर ऐनक के पढ़ रहा हूं, बाइबल पढ़ी जा रही है मेरे से आज। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा ने जब आदम और हवा ने गुनाह किया, सबको वो स्टोरी का पता है, और उसके बाद वो उनके ऊपर जो जलाली कुर्ता था, जलाली कवरिंग थी, वो गुनाह की वजह से वो जाती रही। वो जो उन्होंने जो उनके जलाली कपड़े थे वो खत्म हो गए गुनाह की वजह से, और उन्होंने देखा कि हम तो नंगे हैं, और अपने आप को उन्होंने छुपाया, और छुपा उसके अलावा क्या किया था? किसी को याद हो? अंजीर के पत्तों की उन्होंने लुंगियां बना ली, कपड़े बना लिए अंजीर के पत्तों की, और कुछ उनको कुछ मिला ही नहीं वहां पे कि अंजीर के, हो सकता है आजकल के अंजीर के पत्ते इतने बड़े नहीं हैं, हो सकता है उस वक्त के अंजीर के पत्ते, बागे अदन में जो अंजीरें लगती थी वो पत्ते थोड़े से बड़े हो, जिसको उन्होंने ओढ़ने के लिए, लपेटने के लिए, वो अपने लिए उन्होंने लुंगियां बना ली, कुर्ते बना लिए, व्हाटएवर। तो बट अजीजों, खुदावंद खुदा ने वो बर्रा ज़बा किया उस वक्त, और लिखा है कि खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। खुदावंद खुदा ने उनको कपड़े पहनाए चमड़े के, और वो चमड़ा किसका था? वो बर्रा जो ज़बा हुआ था, वो जो यीशु मसीह है, और वो बर्रे का खून, वो चमड़े के कुर्ते, वो ताजे खून के थे, वो उनको पहना दिए, और उससे उनको फिर उसके बाद कपड़े पहनाने के बाद बागे अदन से निकाल दिया है। और निकालने के बाद खुदा ने क्या किया? अब बाग में एक जिंदगी का दरख्त भी था, और उस जिंदगी के दरख्त के पास खुदा ने उस तरफ जो रास्ता जा रहा था, क्रोपियों को लगा दिया, फरिश्तों को पैरे पे लगा दिया, और वो उस दरख्त के गिर्द घूमने वाली शोला जन तलवार लगा दी कि कोई जिंदगी के दरख्त के पास नहीं आ सकता। बर अजीजों,
आदम और हवा को वो कपड़े पहनाकर, चमड़े के कुर्ते पहनाकर, खून से भरे हुए कुर्ते, वो अहद जो उस वक्त खुदा ने उनसे जो अहद नहीं किया, आदम और हवा ने तौबा भी नहीं की, उन्होंने कुछ एक दूसरे पर इल्जाम जरूर लगाया था। आदम से कहा तूने क्या किया, वो कहता है ये औरत जो तूने मेरे लिए बनाई ना, इसने मुझे फल खाने को दिया था। औरत से कहा तूने ये क्या किया, औरत कहती है वो सांप ने मुझे बहकाया, उसने मुझे फल खाने को दिया था। आमीन। तो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे, मगर खुदा से बिल्कुल तौबा नहीं की। एक ही हुक्म था उस वक्त, तो एक ही हुक्म था और उसको भी उन्होंने तोड़ा और तौबा नहीं की। पर खुदा ने अपनी मोहब्बत जाहिर करते हुए कि इनको मैं सलामत रखूं, ये फिर भी यहां से बागे अदन से निकल जाएं और ये अपनी खेती बाड़ी करें और अपना गुजर बसर करें। बागे अदन से निकाल दिया गया उनको, और जिंदगी के दरख्त की हिफाजत, उसकी प्रोटेक्शन, उसके लिए गार्ड, फरिश्ते लगा दिए, शोला तलवार लगा दी। अजीजों, उसके बाद वही इसी किस्म से आदम ने अपनी औलाद को, और आगे चलते चलते हम देखते रहते हैं हाबिल ने भी वो अपनी जो कुर्बानी खुदा उनके हुजूरी में चढ़ाई, उसने भेड़ बकरियों के बच्चों की कुर्बानी चढ़ाई, और कायन की कुर्बानी, और कायन जो था, कायन और हाबिल दोनों थे, कुर्बानी उन्होंने दोनों ने चढ़ाई, मगर हाबिल की कुर्बानी जो थी वो खुदा ने एक्सेप्ट की, क्योंकि उसमें लहू शामिल था, उसमें लहू शामिल था। क्योंकि आदम और हवा ने, उनके बाप और मां ने हाबिल को ये बताया होगा, ट्रेनिंग दी होगी कि खुदा की हुजूरी में जब आओ तो लहू लेकर आना, क्योंकि हम वो शायद लिटरली समझते हो कि हम मरे नहीं हैं, मगर खुदा ने हमें मौत के हवाले टोटली नहीं किया जिस्मानी तौर पर, बट हम उससे दूर जरूर हो गए हैं। मगर हाबिल को ट्रेनिंग जरूर दी होगी खुदा ने, या पाकरू ने उस पर रिवील किया कि जरूर है कि वो अपनी कुर्बानी जो है वो किसी बछड़े या अपने गले में से किसी की भेड़ की, बकरे की, बछड़े की कुर्बानी लिया जिसमें लहू शामिल हो। और कायन सब्जियों की, फलों सब्जियों की कुर्बानी लाया जिसमें लहू शामिल नहीं था। तो हाबिल की कुर्बानी खुदा ने एक्सेप्ट की, उसको एक्सेप्ट किया, कबूल किया, और उसको खुदा ने बरकत दी। इसी तरीके से आगे वो चलती रही है बात, नूह के जमाने में भी, फिर इब्राहिम के वक्त में भी, फिर मूसा के वक्त में, ये सब लोग कुर्बानी चढ़ाते रहे हैं। शरीयत तो मूसा को मिली है ना बाद में, और खुदा ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं कुर्बानियों की, मगर उससे पहले भी इब्राहिम, इसाक, याकूब और नूह, उनको तो खुदा ने कोई कुर्बानी के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी, मगर उन्होंने जरूर चढ़ाई कुर्बानी है। इसाक के साथ एक डिफरेंट वाकया हुआ था, जो उसके बेटे को उसने कुर्बान करने के लिए बोला, फिर बछड़ा मुहैया किया, उस तरफ भी हम नहीं जाएंगे, मगर वो कुर्बानी चढ़ाते रहे कि जरूर जो एक जिबा, बकरा बछड़ा जिबा जरूर किया जाए, उसका लहू जो है वही हमें बचाता है, हमारे गुनाहों को कवर करता है। अजीजों, अब ये जो बात हमने पढ़ी है, बनाए आलम से वो बर्रा जो ज़बह हुआ था, जो आदम और हवा के लिए ज़िबा हुआ था, जिसके जिनके कपड़े, चमड़े के कपड़े, कुर्ते उनको पहनाए गए और बागे अदन से निकाल दिया गया। तो अजीजों, नए अहदनामे का जो खुदा यीशु मसीह का लहू है, जब हम उसके पास आते हैं, हम तौबा करते हैं, तो वो हमारे गुनाहों को अपने लहू से धोता है, साफ करता है, पाक करता है, और उसके बाद फिर हम बपतिस्मा लेते हैं। आमीन, बपतिस्मा लेते हैं। तो हम एक आयत पढ़ते हैं, गलतियों के खत में एक आयत लिखी है, गलेशियंस, बुक ऑफ गलेशियंस, और उसका 3रा बाब। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 3रा बाब। यूं लिखा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है, ठीक है, तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु पर है, ठीक है, किसी और पर नहीं, जो ईमान मसीह यीशु पर है, ठीक है, खुदा के फर्जंद हो। हालेलुया।
प्रेज गॉड। सबका ईमान यीशु मसीह पर है, सब खुदा के फर्जंद हैं, बेटे बेटियां हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, उसके बाद 27वीं आयत, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, हालेलुया। तुम सब ने, जो पहले तो लिखा कि तुम सब जो जो मसीह यीशु में ईमान है तुम्हारा, खुदा के बेटे बेटियों, उसके फर्जंद हो, और फिर तुम सब ने जिन्होंने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह को पहन लिया, हालेलुया, प्रेज गॉड। हमने पीछे क्या पढ़ा था? खुदा ने आदम और उसकी बीवी के लिए चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। हमने क्या किया है? हमने यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमने जब बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह को पहन लिया, हालेलुया, प्रेज गॉड। वो बर्रा जो कुर्बान हुआ था, जिसने कुर्बान को वो बनाया आलम से, उस वक्त आदम और हवा पता क्या थे? रूहानी तौर पर वो बच्चे थे। उनकी जो रूहानी समझ थी, नॉलेज था, वो मैच्योर नहीं थे। रूह की बातों से वो मैच्योर नहीं थे। जैसे हमारे बच्चे हैं ना, वो गंदे होते हैं, नहाते हैं, खेलते हैं, तो माएँ या बाप हम कपड़े पहनाते हैं बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे छोटे हैं, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। बेशक बाद में समझाया भी जाता है, फिर भी वो बच्चे वो करते हैं जो उनको कहा जाता है कि नहीं करना, फिर भी करते हैं। फिर भी हम माए बच्चे, हम बाप बच्चों के वो गंदे कपड़े डांट डूंट के भी, जो भी है कर करा के कपड़े उनके बदलते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं। आदम और हवा भी रूहानी तौर पर, इसी तौर पर वो मैच्योर नहीं थे। पर मैं और आप जब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो अपनी मैच्योरिटी में लेकर आते हैं। हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, आमीन, हम किसको कबूल कर रहे हैं और किस उस यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। तो हम जब उसको कबूल करते हैं तो हम मैच्योर होते हैं, हम समझदार होते हैं, तभी उसको कबूल करते हैं, तभी तौबा करते हैं, और फिर हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु को पहन लेते हैं। हमें फिर खुदा को नहीं जरूरत पड़ती कि वो हमें पहनाए कपड़े, हालेलुया, उस बर्रे के, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम क्योंकि मैच्योर होते हैं, हम अपने तौर पर फैसला करते हैं, हम अपने तौर पर खुदावंद यीशु को कबूल करते हैं, और उसके लहू से पहले हम ऑलरेडी धुल चुकते हैं, हालेलुया, हम ऑलरेडी धुल चुकते हैं, और फिर हम यीशु को पहन लेते हैं बपतिस्मे के बाद। बपतिस्मा जब लेते हैं, प्रेज गॉड, खुदा को नहीं पहनाना पड़ता हमें, हम खुद ये कहते हैं, हम रास्तबाजी का स्टेप लेते हैं, हालेलुया, हम ये रास्तबाजी का स्टेप होता, रास्तबाजी का हम एक कदम उठाते हैं खुदा की तरफ कि हमने बपतिस्मा लेना है, और बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु को पहन लेते हैं, हालेलुया, हम खुद पहन लेते हैं। हमारी ये चॉइस होती है, हमारी हम ये इसको चूज करते हैं कि हमने यीशु को पहनना है, और हम यीशु को पहन लेते हैं, उसमें हम प्रोटेक्ट होते हैं। आगे चलते हैं, प्रेज गॉड, समझ आ रही है आज? आई मीन ये हम डिफरेंट, अब मुझे पता है ये सब आयत सब ने सुनी हुई है, पर हम इसको डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। लहू का अहद जो खुदावंद यीशु मसीह ने, नए खून का अहद जो हमारे साथ बांधा है, उसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई मीन जैसे मैंने समझा, मैं समझा रहा हूं, प्रेज गॉड, जैसा मुझे पाक रूह ने समझाया। मुकाशिफा की किताब में उसके दूसरे बाब में उसकी 7वीं आयत में, रेवोल्यूशन चैप्टर 2 की 7 वर्स में, इफसस की कलीसिया के नाम खत है। मुकाशिफा 2 बाब उसकी 7वीं आयत, इफसस की कलीसिया के नाम यह खत है। उसमें यह लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कान तो सबके ही होते हैं, सुनता कोई कोई है, आमीन, सबके कान है ना, सुनता कोई कोई है। हम सुनते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, मगर रूह कलीसिया से क्या फरमा रहा है उसको शायद नहीं सुनते हम कभी कभी, आमीन, उसके लिए हमारे कान बंद होते हैं। बट यहां पर लिखा है, जिसके सुनने के कान हो वो सुने के रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। और आगे लिखा है, जो गालिब आए, जो ओवरकम हो, जो
जो इस बात का फैसला कर सके कि मैंने यीशु को पहनना है, हालेलुया, कि मैंने बपतिस्मा लेना है और मैंने यीशु को पहनना है, जो तौबा करे अपने गुनाहों पर वो गालिब आए। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं ये कि और मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा, हालेलुया। जो गालिब आए, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं मैं उस शख्स को जो गालिब आएगा और जो सुनेगा रूह कलीसिया से या रूह से क्या फरमा रहा है, मैं उसको उस दरख्त में से, जिंदगी के दरख्त में से फल खाने को दूंगा। जिस दरख्त को मैंने, जिस दरख्त की तरफ जाने वाले रास्ते पर मैंने क्रोबी खड़े कर दिए थे आदम ताकि उधर ना जाए, मैंने उस दरख्त के गिर्द 16 जन तलवार लगा दी थी ताकि कोई परिंदा भी उस दरख्त के पास ना आए जो आदम को फल तोड़ के ले जाके खिला दे, हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं जो गालिब आए, ये न्यू टेस्टामेंट चर्च के साथ खुदावंद यीशु मसीह का अहद है, खून का अहद, कि जो गालिब आए, क्योंकि हम मुकाशफा में ही पढ़ते हैं कि वो कैसे गालिब आए, बर्रे के लहू से। हम 12वें बाब में पढ़ते हैं, आमीन, 12वें बाब में कि वो बर्रे के लहू और अपनी गवाही के कलाम से वो गालिब आए और उन्होंने फतह पाई है, आमीन, यीशु के नाम में। और यहां पे यही लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो दरख्त जिस पर पाबंदी लगाई गई थी, जिसको गार्ड किया गया था, मैं उस दरख्त में से उनको खाने को दूंगा। अजीजों, खुदा के फिरदौस में फल खाने को दूंगा। मैं और आप जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, अगर हम आदम और हवा के साथ अपने आप को कंपेयर करें, तो आदम और हवा जब गुनाह में गिरे, खुदा ने अपनी मोहब्बत में उनके लिए बर्रा कुर्बान किया और उनको चमड़े के कुर्ते पहनाकर बागे अदन से निकाल दिया। पर अजीजों, ये नए अहद का जो खून है, नए अहद में जो खून हमारे साथ जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो अहद बांधा है, उसमें ऐसा है कि मैं और आप जब उस खून से धुलते हैं, तौबा करते हैं, उस खून से धुलते हैं, तो हम बागेदन से फिर निकाले नहीं जाते। हम जब यीशु को पहन लेते बपतिस्मे की सूरत में, यीशु को पहनते हैं, तो वो बागेदन से निकालने के लिए नहीं, वो फिर बागेदन के अंदर दाखिल करने के लिए ऐसा होता है, हालेलुया। जोर से सुनेंगे, तालियां जाएंगे अगर आपको समझ आई है इस बात की। हम हालेलुया, एक मिनट फिर से मैं समझाता हूं, फिर से, आमीन, ओके। आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदा ने उनको बागे-अदन से बाहर निकाला, मगर बाहर निकालने से पहले खुदा ने एक बर्रा कुर्बान किया, उसके चमड़े की, उसकी खाल के कुर्ते उन दोनों को पहना कर बागे-अदन से बाहर निकाला है। और यह भी कहा कि जिंदगी के दरख्त के पास वो कभी नहीं आ सकते। ओके, मैं ना या कोई इस दुनिया में यीशु को कबूल करता है, तौबा करता है और खुदावंद यीशु के खून से धुलता है और फिर बपतिस्मा लेता है, तो यीशु को वो पहन लेता है, हालेलुया। यानी हर बात पर वो गुनाहों पर गालिब आ जाता है। तो यीशु के वादे के मुताबिक फिर वो बागे-अदन से निकाला नहीं जाता, वो बागे-अदन में दाखिल किया जाता है, हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं उसको जिंदगी के दरख्त में से फल खिलाऊंगा, हालेलुया। वो कौन सा दरख्त कहां पर है? जो खुदा के फिरदौस में है, हालेलुया। बागे-अदन वो फिरदौस ही था, आमीन, खुदा का फिरदौस ही था जहां पर वो दरख्त था। और मैं और आप उसमें फिर यीशु को पहनकर उसमें दाखिल होते हैं, हालेलुया। और वो खुदा की बादशाही है, हालेलुया। जब तक हम नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकते, उसमें दाखिल भी नहीं हो सकते, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, प्रेज गॉड। मेरा ईमान है सबको समझ आ गई होगी इस बड़े भेद की, हालेलुया, कि हम यीशु मसीह को पहनकर फिर बागे-अदन से निकाले नहीं जाते, हम उसमें एक्सेप्ट किए जाते हैं, हालेलुया। मुकाशफा की किताब में, रेवोल्यूशन में, अगर लास्ट चैप्टर में पढ़ें आप, तो उस नए यरूशलेम के बारे में लिखा है जिसके दरवाजे खुले रहेंगे, वहां रात नहीं होगी, और वहां पे लिस्ट लिखी हुई है कि कौन लोग उसमें दाखिल हो सकेंगे, कौन लोग उसमें नहीं दाखिल हो सकेंगे। आप पढ़ सकते हैं मुकाशफा
की किताब रेवोल्यूशन, बुक ऑफ रेवोल्यूशन लास्ट चैप्टर में वो लिखा हुआ सारा कुछ कि कौन लोग उस नए यरूशलेम में भी दाखिल ना होंगे। और वहां के बारे में लिखा है, वहां पर वो जिंदगी का दरख्त है, और वो जिंदगी के दरख्त जो है वो उसकी शाखें एक दरिया जो वहां से बह रहा है जिंदगी का, उसके आर पर हैं। और उस जिंदगी के दरख्त में 12 महीने, हर महीने नया फल लगता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और यीशु मसीह खुद आपको, मुझे उस फल में से कहते हैं मैं खाने को दूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। पर वो नए अहद के खून के बगैर नहीं है। हालेलुया, नए अहद के खून के बगैर नहीं है। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि पुराने अहदनामे में भी वो भी खून का ही अहद था। खरूज की किताब उसका 24 बाब, एक्सोडस चैप्टर 24, की 8वीं आयत। अहद, वो जो खुदा ने जो अहद बांधा था मूसा से, जो कवनेंट किया था, उसकी तस्दीक होती है। लिखा है 8वीं आयत में, 24 बाब और उसकी 8 आयत में ऐसा लिखा है, जब मूसा ने खून को, तब मूसा ने खून, जो अहद का खून था, अहद का खून, ठीक है। जब मूसा ने खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा देखो ये उस अहद का खून है। मूसा की बात हो रही है। मूसा से जो खुदा ने अहद किया था, बनी इस्राएल से जो अहद किया था, मूसा को मूसा बीच में जो है वो खुदा का बंदा कम्युनिकेट करता था खुदा के साथ, और खुदा उसके साथ कम्युनिकेट करता था, और वो फिर जाके सारी बातें इस बनी इस्राएल को बताता था, बनी इस्राएल की बातें खुदा को बताता था। क्योंकि बनी इस्राएल ने खुद ही कहा था कि मूसा, ये जो आवाज उस दिन आई थी ना माउंट सिनाई पे, उससे सारे बनी इस्राएल घबरा गए थे सुन के, खुदा की आवाज सुन के। इतनी गरज और ऐसा माहौल था, आग उतरी हुई थी। तो लोग कहने लगे मूसा तू खुद ही खुदा से बात कर लिया कर, खुदा तेरे से बात करे, जो बात करे तू हमें बता दिया कर, हमारी बातें उसको बता दिया कर। हमने खुदा के साथ बात नहीं करनी, हमने उसकी आवाज सुनने नहीं सुन सकते। वो घबरा गए थे। तो ओके, तब मूसा ने खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावन ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। तो खुदा ने जो मूसा के साथ अहद बांधा था, वो उसको मूसा को खुदा ने कहा था कि ये ऐसी ऐसी कुर्बानियां करनी है और वो खून को लोगों पर छिड़कना है। अजीजों, आपको पता कोई 20-50 लोग नहीं थे, 1000 लोग भी नहीं थे, 1 लाख लोग भी नहीं थे, वो तकरीबन 3 मिलियन 30 लाख लोग थे। आप हिसाब लगाओगे उनके लिए कितने बछड़े कुर्बान किए गए होंगे जिनका खून बहाया गया, कितने। उन सब पर अहद का खून छिड़का गया है। और इस वक्त दुनिया की कितनी आबादी है? 8 करोड़ की आबादी है, बिलियन, अरब, खरब, जो भी है व्हाटएवर तकरीबन। तो आप हिसाब लगाओ कि खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बर्रा, उसका खून अनलिमिटेड है। हालेलुया, उसका खून अनलिमिटेड है। जितने उसके पास आते जा रहे हैं उन पर वो खून छिड़का जा रहा है, उनके गुनाह माफ किए जा रहे हैं, और वो खून अवेलेबल है मेरे आपके लिए एवरी डे, डेली बेसिस पर, सुबह भी और शाम भी। हालेलुया, प्रेज गॉड। और मूसा के दौर में भी वो भी अहद खून का ही था, पर इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने जब ये प्याला दिया है तो खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा था? ये मेरे खून का, नए अहद के खून का प्याला है। हालेलुया, पुराने अहद का नहीं, ये एक नए अहद का खून का प्याला है जिसमें तुम बाग-ए-अदन से निकाले नहीं जाओगे बल्कि बाग-ए-अदन में दाखिल किए जाओगे, और जिंदगी के दरख्त के फल मैं तुम्हें खाने को दूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी उस बात को तस्दीक करता है।
ये मैं बताता हूं इस आयत में भी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो यूहन्ना पहले बाप में वो आयत है, फर्स्ट चैप्टर में, आपको निकालने की जरूरत मैं बताता हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात की गवाही देता है, जब खुदावंद यीशु मसीह भी उस वक्त उसको अपनी तरफ आते देखते, यूहन्ना अपनी तरफ आते देखता है, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मुंह से ये आवाज निकलती है, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। आमीन। उसने ये गवाही दी, रूल पाकरू ने उसके मुंह से ये क्लेम करवाया कि जो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा लिए, सारे जहान के गुनाह उठा लिए जा रहा है। आमीन। वो पैदा ही इसीलिए हुआ, वो इस दुनिया में आया ही इसीलिए। और ये जो यूहन्ना 6 बाब में उसकी 53 और 56 से 56 तक पढ़े हम, तो लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। तुम जब तक उसका गोश्त ना खाओ, उसमें का खून ना पियो, तो उसमें जिंदगी नहीं है। अजीजों, ये होली कम्युनियन, ये खुदा की जो मेज आज सजाई गई है, इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह खुद इस बात के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जब तक, और फिर 54 आयत में लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो इस होली कम्युनियन में शामिल नहीं होता वो आखिरी दिन जिंदा नहीं किया जाएगा। आमीन। अगर वो उस दिन जिंदा किए जाएंगे जिस दिन अदालत का दिन होगा और उनकी सजा उनको फिर सुनाई जाएगी। वो आखिरी दिन जो इस दुनिया का आखिरी दिन है, जो खुदावंद यीशु मसीह जो आने वाले हैं, लिखा है कि जो खुदावंद यीशु मसीह में सोए हैं वो सारे जी उठेंगे। हालेलुया। जो जिंदा होंगे वो बादलों पर उठाए जाएंगे उसका इस्तकबाल करने के लिए, फिर वो सब जमीन पर आके खुदावंद यीशु मसीह जो है 1000 साल बादशाही करेंगे। आमीन। वो आखिरी दिन है। पर उसके बाद जो एटर्निटी शुरू होती है 1000 साल बादशाह के बाद, व्हाइट थ्रोन जजमेंट है, उस दिन सारे जिंदा किए जाएंगे। पर वो जो इस दुनिया के सिस्टम का, इस दुनिया की बादशाहियों का जो आखिरी दिन है, उस दिन वो लोग जिंदा नहीं किए जाएंगे जो इस होली कम्युनियन में शामिल नहीं होते। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज है, मैं नहीं कह रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया। और आगे 55 और 56 आयत में लिखा है, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। मेरा गोश्त खाने की चीज और फिल हकीकत पीने की चीज है। 56 वर्ष, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, अगर हम इस होली कम्युनियन में नहीं है ना, तो दुनिया हमें कोई भी आपको गलत रास्ते पे डाल सकता है। आप कोई भी दुनिया का गलत काम कर सकते हैं और वो बागे-अदन से आप निकाले जाएंगे, मैं निकाला जाऊंगा, हम निकाले जा सकते हैं। पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। सब बोलेंगे हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आइए, आज जो उसका खून, उसका गोश्त खाने के लिए, उसका खून पीने के लिए तैयार है, यीशु का खून जो ये जिक्र किया जाता है कि ओ मसीह लोग पता नहीं बड़ा खून की बहुत बातें करते हैं, ये क्योंकि वो ये माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। मगर अजीजों, ये सब कुछ रूह में है। खुदा रूह है और अमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में, उसके 20 बाब में 20th चैप्टर में लिखा है कि जो खून है, यीशु का खून जो है, ये खुदा का अपना खून है और खुदा रूह है तो वो खून भी रूह में है। आमीन, वो भी रूह में है, खुदा का अपना खून है। वहां पर अमाल की किताब में लूका रसूल लिखता है कि खुदा जो है वो यही कहता है कि तुम सब, यानी जो पास्टर्स हैं, जो खादिम हैं खुदा के, उनके लिए कहा गया है कि तुम खुदा के गल्ला की निगहबानी करो, गल्लाबानी करो।
जिसको, उस गल्ला को, उस कलीसिया को जिसको खुदा ने अपने खून से मोल लिया है। अजीजों, वहां पर साफ लिखा है कि वो खुदा का खून है, जो यीशु का खून है, जो हम लेने के लिए, उसमें जिंदगी है, और वो जिंदगी, वो लहू से मुझे और आपको खुदा यीशु मसीह ने खरीदा है। हालेलुया, खुदा ने खरीदा है अपने बेटे के लहू की कीमत देकर, उसकी जान की कीमत देकर खुदा ने हमें और मुझे और आपको खरीदा है। आमीन। तो अजीजों, इसको मिस नहीं करना, इसको मिस नहीं करना, इसको हकीर नहीं जानना, इसको कोई रिचुअल नहीं जानना। ये खुदावन की, यीशु की का ये कमांडमेंट है कि जब कभी भी ये तुम पीते हो, खाते हो, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए सब खुदावन की हुजूरी में खड़े होते और हम खुदावन की हुजूरी में हम अपने आप को तैयार करते हैं, उसकी मेज पर आने के लिए तैयार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस।